हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 7 लीना's फैमिली। लीना's फैमिली गेट टुगेदर। Lena stays with her family in a village. She stays with her grandparents, parents, and our brother Shamber. Her uncles, aunts, and cousin live near to their house. As you can see in this picture, there are grandparents, parents, and a brother Shamber. Lena is standing on the stool. She likes to be tall. Find out and circle the tallest member in the family. फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हैं लीना एक स्टूल पर खड़ी हुई है। क्यों? She want to look tall in this picture. Can you tell who is the tallest member in this family? Yes, Lena's father. So we have to circle them. Lena's family invited all the family member for a get together. अब लीना की फैमिली को एक गेट टुगेदर के लिए इनवाइट किया गया है। तो आप देख सकते हैं लीना's पेरेंट्स, लीना's grandparents and लीना's uncle aunt is here and लीना's cousin are here. How many members are there in Lena's family? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So, 10 family members. Take the tallest member in the family. Tallest member in the family. अब आप देख सकते हैं Lena's father is the tallest member in the family. Draw a cap on the shortest family member. अब shortest family member देखें कौन है। मुझे तो ये येलो ड्रेस गर्ल लग रही है। Let's draw a cap. So I have drawn a cap. Taller than Lena's mother but shorter than Lena's father. अब लीना की मदर से टॉलर, लीना के फादर से शॉर्टर। पहले हम लीना की मदर से टॉलर देखते हैं। मुझे ये अंकल लग रहे हैं और लीना के फादर से ये शॉर्टर है। सो वी हैव टू राइट लीना's father, लीना's uncle, sorry. Lena's uncle. Who is the tallest and the shortest member of your family? अब आपकी फैमिली में सबसे tallest and सबसे shortest कौन है? मेरी फैमिली में मेरे फादर, my father, my father is tallest and I am short. Lena lives in a hut-shaped house in a hilly area. Can you locate her house in the picture? Circle the correct option. अब आपको इस पिक्चर में देखना है हर्ट-शेप हाउस कहाँ है। मुझे ये हाउस दिख रहा है। This is Lena's house. Let's see. Her house is nearest to farthest from the shop and nearest to farthest from the school. अब स्कूल से तो इसका घर लीना का बहुत farthest है, farthest from, and shop के nearest है. The school is nearest to farthest from the shop and nearest to farthest from the red roof house.
अब स्कूल के बिल्कुल पास तो एक शॉप है, so nearest to the shop, and farthest from the red roof house. ये रहा red roof house. Red roof houses. The child is nearest to and farthest from the school bus and nearest to and farthest from the school. School bus के तो बहुत ही near है. Nearest to the school bus and farthest from the school. Amazing facts. This is the statue of Sardar Vallabhbhai Patel, also called Statue of Unity. Amazing facts. Amazing facts. This is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel, also called the Statue of Unity. It is the tallest statue in the world. Is located in Gujarat, India. So यानी वर्ल्ड का सबसे टॉल स्टैचू हमारे इंडिया में है, वो भी गुजरात में. उसको क्या कहते हैं? द स्टैचू ऑफ यूनिटी. और वो किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. Let us do. Pick the one which is the longest. So this is the longest. Longest braid. This is the longest. Pick the one which is the shortest. So lady finger is the shortest, or this is the shortest. Pick the one which is thickest. अब सबसे ज्यादा thick तो मुझे यही लग रही है, और इनमें से सबसे ज्यादा थिक ये लग रहा है बॉक्स. टेक द वन विच इज द थिनेस्ट. सबसे पतला ये लग रहा है. थिंक एंड डू. ड्रॉ अ स्टिक और अ बैम्बू लॉन्गर देन दिस. अब इससे लॉन्गर बनानी है स्टिक या फिर बैम्बू, तो मैंने ये स्टिक बना दी. ड्रॉ अ रोप शॉर्टर देन दिस. अब एक रोप बनाना है जो इससे शॉर्टेस्ट हो. लेट्स ड्रॉ. दादी इज टेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा's स्वेटर बाय हैंड स्पैन. अब फ्रेंड्स, हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन मतलब हाथ से मापना. इट इज रेडी. सो यहाँ पर देखिए दादी हैंड से कैसे नाप रही है. वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. अब जैसे ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, इरेजर, पेंसिल, जो हम हैंड से नहीं मेजर कर सकते, नहीं माप सकते, तो हम उसके लिए फिंगर्स यूज करते हैं. चित्रा ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल and notebook using her handspan. अब handspan की हेल्प से चित्रा को सब कुछ यहाँ पे. चित्रा also want to find out the length of the stick, table, pencil and notebook using her handspan. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रा को इन सब का लेंथ देखना है कितना है यूजिंग हर हैंड स्पैन. क्या आपको लगता है पेंसिल हैंड स्पैन से मेजर हो पाएगा? अगर वो बड़ी पेंसिल है तो हैंड स्पैन से हो जाएगी. अगर वो छोटी पेंसिल है तो वो फिंगर से होगी. चलिए आइए देखते हैं. थिंक एंड आंसर. माई टेबल इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग. अब मेरा टेबल तो बहुत छोटा सा है, तो वो 3 हैंड स्पैन का है.
My bag is, मेरा बैग थोड़ा सा बड़ा है तो वो 6 हैंडस्पैन लॉन्ग है. My classroom blackboard is 18 handspan long. My maths book is 2 handspan long. My arm is 4 handspan long. My friend's arm is 3 handspan long. अब मेरे आंसर्स तो डिफरेंट है, आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आप अब ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है. जैसे मेरा हाथ आपके हैंड से थोड़ा सा बड़ा है तो मेरी मेजरमेंट और आपकी मेजरमेंट थोड़ी अलग हो सकती है. जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड का हैंड मेजर करोगे, नापोगे, तो वो मेरी यहाँ मेजरमेंट से अलग हो सकता है. Can Chitra use a handspan to find the length of all these things? Find out and circle which things around you are shorter than a handspan. Can we use finger also to find out the length of these things? अब आपको बताना है, पहले तो ये देखना है कि सब चीजों का जो लेंथ है ये हैंडस्पैन से हो पाएगा. नो, बिकॉज देयर इज इरेजर एज वेल. पेन भी है, मेरा पेन तो 1 हैंडस्पैन जितना लॉन्ग नहीं है तो इसके लिए मुझे फिंगर यूज करनी पड़ेगी. फाइंड आउट एंड सर्कल द थिंग्स विच आर अराउंड यू शॉर्टर देन अ हैंडस्पैन. अब मेरे आसपास तो मेरी इरेजर है जो मुझे फिंगर से मेजर करनी पड़ेगी. पेन है जो फिंगर से मेजर करना पड़ेगा. Can we use finger also to find out these things? So yes, we can use our finger as well to find out the length of the things. Let's see. Let us do. What would you choose? Handspan or fingers to find the length of these objects and why? Circle your option in the table. Try to guess before finding the length of these objects. अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो आप मेजर करोगे वो हैंडस्पैन से मेजर करोगे या फिर फिंगर से मेजर करोगे. नेम ऑफ द थिंग्स, सर्कल, व्हाट विल यू यूज, माय गेस एंड माय फाइंडिंग्स. अब आपको ये बताना है आप क्या क्या यूज करोगे और आपको पहले ये गेस करना है कितने हैंडस्पैन लॉन्ग होगा, फिर आपको वो एक्चुअल में मेजर करना पड़ेगा. फर्स्ट, बॉटल. तो बॉटल के लिए आप क्या यूज करोगे, फिंगर और हैंडस्पैन? हैंडस्पैन. मेरा गेस था कि मेरी बॉटल 3 हैंडस्पैन लॉन्ग होगी. जब मैंने फाइंड आउट किया तो मेरी बॉटल 2 हैंडस्पैन लॉन्ग थी. स्पून, ये भी हैंडस्पैन से मेजर होगा. अब आपका हाथ मेरे हाथ से थोड़ा सा छोटा होगा, आप फिंगर का भी इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि स्पून अब डिपेंड करता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. मेरा स्पून स्टैंडर्ड साइज का है, मीडियम है. स्पून. अब इसको हम हैंडस्पैन से मेजर करेंगे. मेरा गेस था कि मेरा स्पून 1 हैंडस्पैन लॉन्ग है और जब मैंने मेजर किया तो 1 हैंडस्पैन ही लॉन्ग था. फ्रेंड्स, अब किसी का स्पून छोटा हो सकता है तो उसको आप फिंगर से भी नाप सकते हैं. पेंसिल. अब मेरी पेंसिल थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने इसके लिए फिंगर यूज की. मुझे लगा कि वो
2 फिंगर्स लॉन्ग होगी, 2 फिंगर ही लॉन्ग थी। योर नोज, इसके लिए वी हैव टू यूज फिंगर्स। तो मेरा गेस था कि वो 1 फिंगर लॉन्ग होगी। जब मैंने इसको मेजर किया तो 1 फिंगर ही लॉन्ग थी। लेग, लेग के लिए हम हैंड स्पैन यूज करेंगे। मेरा गेस था कि वो 4 हैंड स्पैन लॉन्ग होगी। जब मैंने मेजर किया तब 5 हैंड स्पैन लॉन्ग थी। की के लिए फिंगर यूज करेंगे। मेरा गेस था कि 1 फिंगर लॉन्ग है। जब मैंने मेजर किया तो 1 फिंगर ही लॉन्ग थी। और फ्रेंड्स, कई कीज थोड़ी बड़ी होती है। आपकी और मेरी नापना मेजरमेंट्स अलग हो सकती है। अब जिनकी कीज बड़ी है उनका 2 फिंगर्स भी आ सकता है। तो ये जो मेरे आसपास चीजें थी मैंने उनको नापा। Measure by foot span. My guess of foot span, my finding of foot span. Distance between my seat and the door of the classroom. अब मेरी तो फर्स्ट सीट है, तो मैंने फर्स्ट सीट से गेस किया कि वो 15 स्टेप्स होंगे। अब फ्रेंड्स, फुट स्पैन जैसे आप हैंड्स का यूज कर रहे थे वैसे ही आपको फुट का यूज करना है। जब मैंने मेजर किया तब वो 23 स्टेप्स थे। वन साइड ऑफ क्लासरूम। अब क्लासरूम का तो मुझे लगा था कि वो 25 स्टेप्स होंगे। जब मैंने इसको मेजर किया तो वो 30 स्टेप्स थे। Distance between the bed and washroom. मुझे लगा था कि वो 12 स्टेप्स होंगे। जब मैंने मेजर किया तब वो 26 स्टेप्स थे। Distance between two walls of your classroom. अब 2 walls के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना है। तो मुझे लगा था कि वो 28 होंगे। जब मैंने इसको मेजर किया तब वो 32 थे। Let us do pick the heavier object. अब मुझे बकेट थोड़ी सी हैवी लग रही है। यहाँ पर watermelon. Take the lighter object. एक सॉल्ट की छोटी सी थैली या फिर राइस की बड़ी सी थैली। तो सॉल्ट इज लाइटर। Bag or a water bottle. तो water bottle is lighter. Color the heavier object. Let us color. अब जिस बास्केट में कैट बैठी हुई है मुझे तो ये हेवियर लग रहा है। जिस बास्केट में कुछ भी नहीं है वो तो लाइटर होगी। A bucket full with water and एक खाली बकेट। तो जिसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है वो वाली बकेट तो हैवी होगी। Let us color this bucket.
कलर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका कलर बाहर ना जाए। ग्लास और अ वाटर बॉटल, तो मुझे तो ये वाटर बॉटल में बहुत सारा वाटर दिख रहा है, तो ये हैवी होगी। ब्लैंकेट और अ बेडशीट, तो ब्लैंकेट तो हैवी लग रहा है, so this blanket is heavier. Let's color this. Color the lighter object. अब आपको लाइटर में कलर करना है। कोकोनट वाटर और अ लेमन, लेमन इज लाइटर। बकेट और अ मग, तो मग इज लाइटर, सो मैंने मग में रेड कलर कर दिया। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं। अ बॉल और अ फुटबॉल, तो मैंने इसमें बॉल में कलर कर दिया बिकॉज बॉल इज लाइटर। अ बास्केट फुल विद वेजिटेबल्स और अ एम्प्टी बास्केट, तो खाली बास्केट लाइटर होगी। लेट्स कलर दिस। Let us talk. Who is heavier between you and your friend? How will you find out? Discuss in the class. अब फ्रेंड्स, आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स में से तो बहुत इजीली बता दिया। Let us talk. Who is heavier between you and your friend? How will you find out? Discuss in the class. अब क्लास, आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स में से तो बहुत इजीली बता दिया कि हु इज हेवियर, हु इज लाइटर, बट आपको अब अपने फ्रेंड में से बताना है कि आप हेवियर हो या आपके फ्रेंड हेवियर है। तो आप ये कैसे पता लगाओगे? एक दूसरे को उठाकर? नहीं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट मेजर करेंगे आप दोनों का। तो वेट मेजर कैसे करते हैं? वेटनिंग मशीन से। फाइंड आउट योर वेट। कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजुअली चेक्ड? तो फ्रेंड्स, आप डॉक्टर के पास जाकर अपना वेट चेक करवा सकते हैं वेटनिंग मशीन से, क्योंकि इनके पास वेटनिंग मशीन होती है। Let us do. Fill the bucket with the water. Dash jugs of water will fill the bucket. अब कितने jugs of water चाहिए? मुझे तो 13 jugs चाहिए। Dash glass of water will fill your bucket. 20, क्योंकि जग थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्लास थोड़ा सा छोटा होता है। Dash bowls of water will fill your bucket. अब फ्रेंड्स, आप बता पाएंगे कि बोल कितने? मेरा बोल तो ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो मैंने जब उसको फिल किया था तब उसका आंसर 10 आया था। Answer the following question. How many cups of water will fill your water bottle? 4 cups of water. How many cups of water will fill your bucket? तो मेरे बॉटल में 4 cups of water लग जाते हैं to fill my water bottle. Now, fill your friend's water bottle with the same cup. How many cups of water will
fill your friend's bottle. तो मेरे फ्रेंड की बॉटल मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, उसमें 6 कप ऑफ वाटर लग गए. सेम कप मैंने यूज किया था. Which bottle holds more water? A friend के पास थोड़ी बड़ी बॉटल थी, इसलिए इसमें ज्यादा वाटर होल्ड हो रहा था. My friend's bottle. Try it with your try it with another bottle. Which bottle hold less water? तो मैंने एक बॉटल का यूज किया था जो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मेरी बॉटल में थोड़ा सा कम पानी था. माय बॉटल. Circle the one which holds more water. अब किस में ज्यादा पानी आ रहा है? मग और अ बकेट? बकेट. कप और अ ग्लास? ग्लास. These two earthen pot. ये घड़े हैं, तो ये घड़ा थोड़ा बड़ा है. This cooler and this water bottle. This one. This bottle and this kettle. तो ये मुझे तो सेम लग रहे हैं, पर आप देखोगे इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाटर होल्ड करेगी. केटल. वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस. वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस. टेक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज. फॉर ब्रशिंग द टीथ. अब ब्रश करने के लिए अब बकेट फुल ऑफ वाटर चाहिए, अ मग फुल ऑफ वाटर. अ मग फुल ऑफ वाटर. फॉर बाथिंग. अब बाथ के लिए आपको कितना वाटर चाहिए? अ बकेट फुल ऑफ वाटर और अ टैंक. हमें सिर्फ एक बकेट चाहिए होती है. फॉर प्रिपेयरिंग 2 glasses ऑफ लेमन वाटर. अब हमें 2 ग्लास लेमन वाटर प्रिपेयर करना है, उसके लिए अ जग ऑफ वाटर और बकेट ऑफ वाटर. Jug of water. For watering a plant, a mug of water or a bucket of water. We need a mug of water. Class, this is a project work. Discuss who is important to take water in a bucket. Discuss why it is important to take water in a bucket for bathing instead of shower or running tap water. तो फ्रेंड्स, क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमें नहाने के लिए कि बकेट का पानी ही यूज करें, हम शावर यूज ना करें और टैप को खुला ना छोड़ें. तो आपको ये डिस्कस करना है प्रोजेक्ट वर्क में. तो फ्रेंड्स, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो हम शावर का जब यूज करते हैं या फिर टैप खोल के छोड़ देते हैं, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है. तो हमें पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई हमें बकेट का यूज करना चाहिए नहाते टाइम. Tear and paste colorful paper strip to make one portion of the strip and tear and paste colorful paper strip to make one portion of the strip short and another is longer. The strip should be in different in color. तो फ्रेंड्स, आपको कलरफुल पेपर शीट स्ट्रिप्स में काटनी है और इसकी वन साइड शॉर्टर रखनी है और वन साइड लॉन्गर रखनी है. और यहाँ पर आपको शॉर्टर लगानी है, यहाँ पे इसको लॉन्गर लगानी है स्ट्रिप्स. यहाँ पर List the things which are easier to carry and which is difficult to carry. यहाँ पर आपको लगानी है. Get bottles and bowls, get bottles, bowls and glasses of different sizes. Now see how many glass or bowls of water can fill the Get bottles, bowls and glasses of different sizes. Now see how many glasses or bowls of water can fill the bottle.
which can hold more water. तो फ्रेंड्स आपको ये सब कलेक्ट करना है, उसमें वाटर बॉटल फिल करना है, तो क्लास आपको ये ग्लासेस बोल्स सब कुछ कलेक्ट करना है डिफरेंट साइज का, फिर उसको बॉटल में डालना है, पानी डालकर देखना है और आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा पानी होल्ड किया है, बॉटल ने, बोल ने या फिर ग्लास